Hello friends, welcome back in my another lecture in transportation and assignment problems. In this lecture, I am going to discuss about assignment problem. Assignment problem, this is just a particular case of transportation problem. Here the objective is to assign resources to the activities, right? And how many resources will be there? So how many resources we have to assign, it depends on how many activities are there. So number of resources must be equal to number of activities, so as to either minimize the total cost or maximize the total profit, right? And mathematically assignment problem can be stated as, means we have to minimize the transportation cost, which is called to summation, double summation. One is for I is varying from 1 to n, j is also varying from 1 to n. Next is cij, ij are in subscript, xij, xi in xij are also subscript. Subject to constant to the constant. फर्स्ट कांस्टेंट के हमारे पास एक्स आई जे मस्ट बी इक्वल टू आइदर 1, और या तो इसकी वैल्यू एक्स आई जे की 1 होगी या तो 0. इफ प्रोवाइडेड इफ ith person is assigned to jth job, right? Job or not, means if ith person is assigned to jth job, then xij will be 1, otherwise केस में क्या हो जाएगा 0. here person means resource, जिसको मैंने आई से डिनोट किया है, एंड जॉब मीन्स एक्टिविटी, जिसको मैंने जे से डिनोट किया है. सो एक्स आई जे इज 1 और 0 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, राइट? ऑल्सो summation xij is equal to 1 when j is varying from 1 to n and I is fixed, इसको बोलते हैं हम. दिस मीन्स one job is done by ith person and I is equal to 1 to so on up to n. So xij is 1 when I is fixed. One job is one job, this means one job is done by one person. And एक और है इसमें, summation xij is equal to 1 when j is fixed, I is varying from 1 to n. So this means only one person should be assigned, only one person should be assigned to the jth job, और j इसमें वेरी कर रहा है अगेन 1 to n. मीन्स केवल और केवल एक पर्सन को हम साइन करें एक जॉब के लिए, दैट मीन्स एक्स आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन जे इज फिक्स, राइट? वेयर इसमें दो चीजें आ रही है, वेयर एक्स आई जे मीन्स jth job is to be assigned to jth job is assigned to ith person, jth job is assigned to ith person, right? And एक इसमें आ रहा cij, and cij means cost of assignment, right? cost of assignment of resource I to the destination, I to the activity j. If the cost of, for example, 1 2 means cost of assignment of resource 1 to activity 2, right? Assignment problem, this is a variation of
transportation problem with two characteristics, and that is number one, cost. The cost matrix must be square, तो रोज और कॉलम जो कॉस्ट मैट्रिक्स होगा उसमें इक्वल होना चाहिए, दैट इज, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड assignment problem, right? And number two is the optimal solution for problem would always be such that optimal solution for the problem would always be such that there shall be only one assignment in given row or column of the cost matrix. So these are the two conditions, these must be satisfied. First of all, before सॉल्विंग द असाइनमेंट प्रॉब्लम, कॉस्ट मैट्रिक्स, गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, रोज और कॉलम उसमें इक्वल हो। और दूसरा, जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे, जितने भी उसमें एलोकेशंस होगी, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, देयर शुड बी ओनली वन असाइनमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। सो दीज आर द टू कंडीशंस. Solution algorithm, what are the rules that we have to follow for solving assignment problem? And this is, must remember, problem objective function must be of a minimization type, means we have to minimize the total transportation cost. So first is, हमको जो given cost table है उसको चेक करना है whether that is square or not. अगर square नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, डमी रो या डमी कॉलम हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड असाइनमेंट कॉस्ट जो डमी रो और डमी कॉलम में जितने भी सेल्स बनेंगे वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0. और दूसरा रूल है, वी हैव टू आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो of the given cost table, right, and then subtract that from each element of that row. यहाँ से हमारे पास एक टेबल बनेगा, उसको हम नाम देंगे टेबल 1. जो टेबल 1 बना हमारे पास रिवाइज, तो उसमें हम इस टेबल में हम आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द ईच कॉलम, एंड उसको भी हम सबट्रैक्ट करेंगे हर एक जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर एक कॉलम का है फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम. तो यहाँ से हमारे पास एक और नया टेबल बन जाएगा, टेबल 1 रिवाइज हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टेबल 2. Number 3, we have to examine successively each row for single zero. फिर हम उसके बाद जो टेबल 2 में हम हर एक रो को 1 by 1 सिंगल जीरो के लिए लोकेट करेंगे. अगर किसी में सिंगल जीरो होगी तो उसमें हम असाइनमेंट करेंगे बाय मेकिंग स्क्वायर अराउंड इट. मीन जीरो को हमने असाइन करना है, जीरो के अराउंड में एक स्क्वायर बना देंगे हम, राइट. एंड देन क्रॉस ऑफ ऑल अदर जीरो इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स. और जो उस जिस रो में हमने असाइनमेंट कर दी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम आ गया उसमें कोई जीरो होगी तो उसमें क्या कर देंगे, क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस दैट विल बी क्रॉस्ड ऑफ, राइट. एंड सेकंड स्टेप इज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक टेबल और बन जाएगा, टेबल 2 का बन जाएगा हमारे पास टेबल 3. जब फिर हम टेबल 3 में देखेंगे, फॉर ईच कॉलम के लिए हम हर एक कॉलम में आइडेंटिफाई करेंगे सिंगल जीरो के लिए. अगर किसी में सिंगल जीरो है तो उसको हम क्या कर देंगे, साइन कर देंगे उसको बाय मेकिंग स्क्वायर अराउंड इट, प्रोवाइडेड दैट जीरो इज नॉट असाइंड और क्रॉस्ड ऑफ. वंस एनी जीरो इज असाइंड, उसको हम फिर से असाइन नहीं कर सकते हैं, और एनी जीरो इज क्रॉस्ड ऑफ उसको भी हम असाइन कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ से टेबल 3 का क्या बन जाएगा, टेबल 4 बन जाएगा, राइट. इफ अगर किसी रो या कॉलम में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जीरोज होगी तो हमारे पास असाइन करने के लिए ऑप्शन होगी either first or second accordingly, right. So this is the third rule जिससे हमारे पास टेबल 4 आया. now come to the fourth rule, जो टेबल 4 आया वहां से अब देखेंगे हम क्या बनता है. दिस इज फॉर टेबल 4 के लिए. टेबल 4 के लिए हम देखेंगे, टेबल 4 में हम देखेंगे तो
3 केसेस राइजेस। पहला केस क्या बनेगा, इफ नंबर ऑफ असाइंड सेल्स, जिनको हम ऑक्युपाइड सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। अगर जितने भी हमारे पास असाइंड जीरोज आ गई या असाइंड सेल्स आ गए, ऑक्युपाइड सेल्स आ गए, अगर वो रोज नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो या नंबर ऑफ कॉलम बोल दो, बिकॉज मैट्रिक्स इज स्क्वायर, राइट, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड। तब हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड एंड total cost associated with this solution, फिर हम टोटल कॉस्ट निकाल देंगे associated with this solution is obtained by adding cost, जो भी हमारे पास कॉस्ट फिगर होगा, ये स्टार्टिंग में गिवन होती है, एडिंग कॉस्ट फिगर्स इन द ऑक्युपाइड सेल, जहाँ पर हमने असाइन किए, जो जीरोस हमने असाइन किए वहाँ पर उनकी उसमें जो होगी उसमें कॉस्ट, उसको हम क्या कर देंगे, उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। केस 2 ये तो हुआ अगर नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल आ जाए किसके, रोज या कॉलम्स के इक्वल। केस टू मीन्स इफ जीरो सेल, जिसमें जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जीरो थी, इफ जीरो सेल इज सेलेक्टेड arbitrarily, right, in step 3 arbitrarily in step 3, then there exist, तो बोलते हैं हमारे पास आता है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएंगे, अल्टरनेट मीन्स एक से ज़्यादा, अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैसे ही करेंगे, जो कॉस्ट फिगर होगा उनको ऑक्युपाइड सेल्स के लिए साइन जीरो उनको आपस में हम ऐड कर लेंगे, राइट। केस थ्री में क्या होगा आपके पास, इफ नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज obtained means अगर number of occupied cells assigned zeros are not equal to either number of rows or column, then proceed further, तब हमको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा टू रोल 5। अदरवाइज इस केस में यहीं स्टॉप कर देंगे, इस वाले केस में भी यहीं स्टॉप करेंगे। रोल 5 को हम तब प्रोसीड करेंगे अब इफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, मींस नंबर ऑफ असाइंड जीरोस आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये कहाँ पर चेक करेंगे, ये चेक करेंगे हम टेबल 4 में, जो टेबल 4 हमारे पास स्टेप 3 में आया है, राइट, उसके लिए करेंगे टेबल 4 में, फॉर टेबल 4। अब रूल 5 क्या बोलता है, वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस इन द रिवाइज कॉस्ट टेबल, जो हमारे पास स्टेप 3 में टेबल 4 आया था, राइट। हम क्या करेंगे, वी विल असाइन दोज रोज इन विच नो असाइनमेंट इज मिस, सॉरी वी विल टिक मार्क दोज रोज, उन रोज को हम टिक मार्क करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। टिक मार्क ऐसा टिक मार्क का सिंबल हम लगाएंगे इस तरह से, देन वी विल टिक मार्क द रिस्पेक्टिव कॉलम दैट कंटेन द जीरोज ऑफ टिक मार्क रो, जो टिक मार्क रो हमने फर्स्ट में की थी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में अगर कहीं हमारे पास असाइंड उसमें कोई जीरो होगी तो उसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क जो हमने रो फर्स्ट स्टेप में की थी, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई हमारे पास जीरो है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, उस कॉलम को भी हम क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ एनी assigned zero occur in the tick mark column, जैसे that is above they are considering for part B में हम क्या करेंगे, if any assigned zero occur in the tick mark column then tick mark respective row, फिर हम क्या करेंगे
उसमें जो रिस्पेक्टिव रो आएगी दैट कैन असाइन 0, उसको भी हम क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, उसको भी हम टिक मार्क कर देंगे, राइट। स्टेप 2 में हमने जो कॉलम को टिक मार्क किया था, अगर उसमें कोई ज़ीरो आ रही है, उसमें कोई असाइंड ज़ीरो आ रही है जिसको हमने सर्कल किया था, सर्कल से मार्क किया था साइन ज़ीरो है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम, उसके रिस्पेक्टिव रोज में जो है साइन जीरो, उसको भी हम क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ईच टिक मार्क कॉलम। जितने भी हमारे पास टिक मार्क कॉलम होंगे उसके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे 4 में टिक मार्क कॉलम, तो चारों कॉलम हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड अनमार्क्ड रो अगर कोई उसमें पूरे कॉस्ट टेबल में कोई अनमार्क्ड रो है, उसमें भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। सो यहाँ से आएगी आपका कॉलम से आएगी वर्टिकल लाइंस, अनमार्क्ड रो में से क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएगी, राइट। फिर क्या करेंगे, देन इफ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन, चाहे वो वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज या कॉलम की इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, राइट। देन करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। जो भी हमारे पास उस तरह से यहाँ से बनेगा, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर टेबल 4 के लिए कर रहे हैं, जो हमारे पास स्टेप 3 में आया था। और ऐसे ही हम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास टेबल नंबर 5। फिर टेबल नंबर 5 जो भी हमारे पास एलोकेशन है, इसको हम करंट सोल्यूशन मान लेंगे, वो ऑप्टिमल हो जाता है कब, इफ नंबर ऑफ असाइन जीरोज आर इफ नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन आर इक्वल टू रोज और कॉलम, राइट। अगर ऐसा है, इफ नॉट अगर मान लो नंबर ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नॉट इक्वल आइदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम, इफ नॉट देन प्रोसीड टू रूल 6। फिर हम रूल 6 को प्रोसीड करेंगे। अगर तो ये आपस में इक्वल आ जाते हैं लाइंस, तो हम यहीं फिनिश कर लेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अदरवाइज वी हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर रूल 6। अब रूल 6 क्या बोलता है, रूल 6 में अब जो मीन्स फॉर टेबल 5, अब हम टेबल 5 के लिए करेंगे, फॉर टेबल 5 के लिए, जो हमारे पास टेबल 5 आता है रूल 5 से, हम क्या करेंगे, हम उसमें सेल्स चेक करेंगे विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन। ऐसे सेल्स को हम, बिकॉज वी हैव ड्रॉन लॉट्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर हम चेक करेंगे वो सेल जिसमें विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन, और उसमें हम स्मॉलेस्ट, उन सभी अनकवर्ड सेल्स में हम चेक करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। लेट अस सपोज दैट एलिमेंट इज के। फिर हम उस एलिमेंट के को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच एलिमेंट इन द सेल नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन। फिर जितने भी नो अनकवर्ड सेल्स थे, उसमें से हम उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड और इसी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम ऐड करेंगे एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, जहाँ जिस सेल में 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्शन पर आएगी, और उसमें जो पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू होगी, उसमें हम के को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास टेबल 6 आ जाएगा, राइट, टेबल 6 आ जाएगा। देन वी हैव टू रिपीट रूल 3 to 6, फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे फिर से रूल 3 में, 3 to 6 अंटिल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, राइट। तो इस तरह से, और मस्ट रिमेंबर ये रूल अप्लाई करने से पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो, मिनिमाइजेशन टाइप की हो। सो नोट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम can be converted into minimization type by first locating the largest, पहले तो हम लोकेट करेंगे लार्जेस्ट पे ऑफ, या बोलेंगे हम हाईएस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट पे ऑफ या हाईएस्ट एलिमेंट को चेक करेंगे हम इन द साइंड असाइनमेंट और कॉस्ट टेबल, जो गिवन कॉस्ट टेबल, उसमें हम सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे हम, राइट। एंड
then subtract all the elements of the given cost table, जिसको हम असाइनमेंट टेबल भी बोलते हैं, गिवन कॉस्ट टेबल फ्रॉम अ हाईएस्ट element and then solve the problem by as usual method, मीन्स फिर से हमने रूल 1 to 6 लगाना है अकॉर्डिंगली, राइट, बाय एज यूजुअल मेथड, फिर से हमने रूल 1 to 6 ना, दिस इज ओनली डिफरेंस। बस मैक्सिमाइजेशन, इससे क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी हमने फिर से रूल 1 to 6 ही लगाने हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट the solution algorithm for assignment problem, for finding optimal solution of the assignment a problem, right. Let's take one example. This is the problem, this is the assignment problem. Here these are the programmers, right, these are the programmers and these are the programs. Programmers means these are the person, ये person है हमारे पास, मीन्स रिसोर्सिस हुए, प्रोग्राम्स दीज आर द एक्टिविटीज, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम्स मीन दीज आर द एक्टिविटीज, राइट, ABC आर एक्टिविटीज एंड 1 2 3 आर पर्सन और प्रोग्रामर. We have to assign the programmers to the programs in such a way that computer time is a minimum. सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, स्टेप 1 में रूल 1 क्या बोलता है, पहला रूल 1, प्रॉब्लम मस्ट बी द गिवन कॉस्ट टेबल मस्ट बी स्क्वायर, क्लियरली given cost table is square, table is cost table is square, that is a balanced assignment problem. तो ये क्लियर है कि बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, राइट. रूल 2, अब हम रूल 2 चलते हैं. रूल 2 में हम क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे हर एक रो में, राइट. हियर smallest element in रोज आर क्या क्या है, पहली रो में स्मॉलेस्ट 80 है, दूसरे में भी 80 है, एंड थर्ड में क्या है 110, राइट, 110 रिस्पेक्टिवली. हर एक रो में हमने चेक किया स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, राइट. एंड अब हम क्या करेंगे, अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया हमारे को, एंड सब्ट्रैक्टिंग दीज एलिमेंट, फिर हम इन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दिस एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रोज, एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रोज, राइट. सो ये वाला मैट्रिक्स टेबल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इज, एज वी नो, फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या 80, तो हर एक में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. तो यहाँ रह जाएगा 40, 100 माइनस 80 यहाँ रह जाएगा 20, 80 माइनस 80 0. सेकेंड में 80 था 0, ये रह जाएगा 10, इसमें से करेंगे तो ये रह जाएगा 30. इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 110 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये 30 रह जाएगा, भी इसका स्मॉलेस्ट है 110, 110 यहाँ करेंगे ये रह जाएगा 10. तो ये बन जाएगा हमारे पास टेबल 1. पहले हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किया, इसमें पहले में 80 था, इसमें भी 80 है, इसमें 110, फिर उस तरह से हमने रो वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, राइट. दिस इज रूल 2. ऑल्सो ये रूल 2 में ये भी है. ऑल्सो नाउ टेबल 1 में हम चेक करेंगे, नाउ ऑल्सो फॉर टेबल 1 के लिए, अब हम टेबल 1 के लिए चेक करेंगे. फॉर टेबल 1 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अब हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉलम वाइज देखेंगे. नाउ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन
कॉलम्स आर, इसमें क्या, इसमें 0 10 0, 0 10 0 है, 0 10 0 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने, इसमें 0 है स्मॉलेस्ट, इसमें 10 है, इसमें 0 है, राइट। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, एंड इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड सब्ट्रैक्टिंग these elements of these elements of respective column, subtracting these element from the these elements from the elements of respective columns we get। तो हमारे पास ये टेबल भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, 0 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस हर एक एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट, तो एज इट अनचेंज रहेगा। इसमें 10 है तो हर एक एलिमेंट में हम इस कॉलम में 10 को सब्ट्रैक्ट 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 0 ये 20 रह जाएगा, राइट। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, सभी में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अनचेंज रहेगा, 0 30 10 रह जाएगा। तो दिस इज, ये टेबल फिर से रिवाइज हो गई। अब ये क्या बन गया, टेबल 2 बन गया। फिर इस टाइम हमने कॉलम वाइज चेक किए, कॉलम वाइज, राइट। इसमें हमने कॉलम वाइज चेक किए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और उसी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमने हर एक कॉलम वाइज में सब्ट्रैक्ट किया, सो वी गेट टेबल 2। सो टेबल 1 फिर से रिवाइज हो गया, अब ये टेबल बन गया 2, राइट। सो दिस इज रूल 2। अब रूल 3 पर आते हैं। व्हाट इज रूल 3? So this is all about rule 2, right? Now come to the rule 3. रूल 3 ये होगा फॉर टेबल 2 के लिए। अब हम टेबल 2 में देखेंगे, राइट। फॉर टेबल 2, examining each row successively and making an assignment to single zero by drawing square around that zero, right, and crossing other zeros in the corresponding column, right, corresponding कॉलम्स देख लेते हैं। टेबल 2 में हमारे पास क्या था, टेबल 2 में हमारे पास आया था यहाँ पर 40 0 0, ये टेबल 2 का ही है, राइट। ये वैल्यू वही है, बस हमने असाइनमेंट करनी है। इसमें वैल्यू थी 10 0 20 टेबल 2, एंड दिस इज 0 30 10। मीन्स व्हाट ऑफ दिस मीन, हमको रो वाइज हम वो रो, उस रो को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सिंगल जीरो, इस रो में सिंगल जीरो है तो इसको हम असाइन कर सकते हैं बाय मेकिंग बाय ड्राइंग स्क्वायर अराउंड इट। जिसको मैंने असाइन कर लिया। अब इसमें असाइंड जीरो थर्ड कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई और जीरो होगी, उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देयर इज नो अदर एनी अदर जीरो, तो क्रॉस होने का कोई चांस नहीं है, राइट। यहाँ हो गई। इसमें डबल जीरो यहाँ पर असाइनमेंट के पॉसिबल नहीं है, सिंगल जीरो में, सिंगल जीरो वाली रो असाइनमेंट होगी। इस अब थर्ड रो पर आते हैं। थर्ड रो में एक सिंगल जीरो, तो यहाँ हम असाइनमेंट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ भी हम ड्रॉ, इस जीरो के अराउंड हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ भी असाइनमेंट होगी। कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम फर्स्ट बन गया, इसमें कोई और जीरो को तो उसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो मीन्स एक और जीरो थी यहाँ पर, इसको मैंने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। तो दो असाइनमेंट आ गई इस तरह से हमारे पास। एंड अब टेबल 2 की जो टेबल 2 था उसमें मैंने असाइनमेंट कर ली, दो आ गई, तो ये बनेगा टेबल 3 ऑल्सो। अब करेंगे फॉर टेबल 3 के लिए, फॉर टेबल 3 ऑल्सो, फॉर टेबल 3
एग्जामिंग ईच कॉलम, अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, एग्जामिंग ईच कॉलम, राइट, एंड मेकिंग असाइनमेंट राइट, एंड मेकिंग असाइनमेंट एक्सेप्ट क्रॉस जीरो एंड असाइंड जीरो। अगर कोई और हो गया, कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। कॉलम वाइज इसमें तो ये क्रॉस्ड है, ये असाइंड है, तो इसमें और कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ओनली वन असाइनमेंट इज पॉसिबल इन ईच कॉलम एंड ईच रो। इसमें अब कॉलम, इसमें तो कुछ भी असाइनमेंट नहीं होगी फर्दर। इसमें हो सकती है, इसमें सिंगल, इसमें कोई सिंगल जीरो नहीं थी, जो सिंगल जीरो थी वो आइदर क्रॉस्ड है या तो असाइंड है। एक्सेप्ट, यहाँ लिख सकते हैं आप, एक्सेप्ट क्रॉस्ड एंड असाइंड जीरोज। ऐसा नहीं है कि जो पहले क्रॉस हुई या असाइंड उसको भी फिर से आप असाइन कर दो। इसमें है सिंगल जीरो, तो इसको हम असाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर असाइन हो गई, सॉरी यहाँ पर नहीं असाइन होगी, यहाँ तो एज यूजुअल जीरो थे, टेबल टू था। अब इसको यहाँ कर रहे हैं, ये था 40 0 0, ये असाइन है, ये क्रॉस है, ये 10 0 20। इस टेबल थ्री का हमने टेबल फोर बनाना है, ये है, ये साइंड है, दिस इज 30, ये 10, ये टेबल थ्री है। अब यहाँ पर टेबल थ्री को हमने रिवाइज करके टेबल फोर बन जाएगा। कहाँ पर असाइन हो रही है, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, इसमें सिंगल जीरो कॉलम वाइज, तो यहाँ पर असाइनमेंट हो गई, राइट। और इसके इस असाइंड जीरो, ये इस कॉलम में तो कॉरस्पॉन्डिंग रो है, इसमें कोई और जीरो होगी तो उसको क्रॉस, ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है। फिर आओ नेक्स्ट में, इसमें कोई सिंगल जीरो नहीं थी, नहीं है जिसको हम असाइन कर सके, जो है वो दैट इज ऑलरेडी साइंड। सो इन दिस वे टेबल थ्री इज रिवाइज्ड टू टेबल फोर। अब आप देख सकते हैं टेबल फोर में जो असाइनमेंट हमारे पास थ्री आ गए, दीज आर देयर इज ओनली वन असाइनमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। आप देखते हैं हर एक रो में एक ही असाइनमेंट है और हर एक कॉलम में भी एक ही असाइनमेंट है, राइट। एंड दिस जीरो इज ऑलरेडी क्रॉस्ड ऑफ। तो ये then matrix in table 3 is further reduced as below। अब जब हमने कॉलम वाइज असाइनमेंट की तो एक ही असाइनमेंट हुई और टोटल असाइनमेंट हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमारे इस तरह से हमारे पास कितनी असाइनमेंट्स हो गई, 3 असाइनमेंट्स आ गई, राइट। Therefore in this way all the zeros are, या तो सारी जीरोस क्या है, या तो असाइंड है, ऑल द जीरोस आर आइदर असाइंड साइंड और क्रॉस्ड ऑफ, या तो वो क्रॉस है या तो असाइंड है। किसी भी रो और कॉलम में हम चेक करेंगे, ऑल द जीरोस आर आइदर असाइंड और crossed off, right। Here the number of assigned zeros, जिसको हम ऑक्युपाइड सेल्स भी बोलते हैं, असाइंड जीरोस या occupied cells is equal to number of rows और कॉलम, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ असाइंड जीरोस भी 3 है और नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी हमारे पास कितने 3 है। इट मीन्स दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच। तो हमने यही स्टॉप कर लिया। therefore assignments from programmers to the programs are क्या क्या असाइनमेंट्स हम देख सकते हैं। ये असाइनमेंट कौन सी है, 1C, दिस इज असाइनमेंट 1C, दिस असाइनमेंट इज 2B एंड थर्ड असाइनमेंट क्या हमारे पास 3A। ये 3 असाइनमेंट आई हमारे पास, राइट। इट मीन्स फर्स्ट
first person is assigned to third activity, second person is assigned to second program is assigned to second activity, and third programmer or person is assigned to first activity. And the minimum time हम निकाल सकते हैं. The minimum टाइम हम देखेंगे. स्टार्टिंग जो हमारे पास टेबल था, स्टार्टिंग में जो टेबल था हमारे पास, तो उसमें हमारे पास 1C सेल में क्या लिखा था, 1C सेल में स्टार्टिंग में उसमें क्या था आपके पास 80 था वो टाइम जो कॉस्ट दी थी हमारे पास. ठीक है, दिस इज असाइनमेंट कॉस्ट जिसको बोलते हैं. जो स्टार्टिंग में हमारे पास इसमें क्या था आपके पास 80 था. और इस पोजीशन इस सेल में क्या था हमारे पास 2B सेल में, 2B सेल में हम स्टार्टिंग में 90 टाइम दिया था, राइट. कॉस्ट टाइम दिया था, सॉरी कॉस्ट 90 कॉस्ट दी हुई थी. एंड दिस कॉस्ट इज इन, सॉरी टाइम दिया है आपको से, देन दैट टाइम इज इन मिनट्स. एंड और इस सेल में क्या दिया था हमारे पास, इस सेल में दिया था 110. ये मिनट्स में है, तो ये टोटल अगर हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 280. ये मिनट्स में जो हमारे पास क्या दिया था टाइम दिया, तो मिनट्स में दिया था. सो मिनिमम टाइम ऑन कंप्यूटर इज 280 मिनट्स. सो in this way we have obtained the optimal solution for the given assignment problem. so starting में हमने चेक किया था, बिकॉज हमने मिनिमाइजेशन का केस था ये, तो हमने सीधा क्या किया है इसमें, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज द टाइम, तो हमने सीधे रूल अप्लाई किया, राइट. रो वाइज हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किया, उसमें हमारे पास टेबल 1 आ गया. फिर हमने उस टेबल 1 में कॉलम वाइज असाइनमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किया, वहाँ से हमारे पास टेबल 2 आ गया. फिर हमने रो वाइज असाइनमेंट की, वहाँ से टेबल 3 आ गया. टेबल 3 आ गया. फिर हमने कॉलम वाइज असाइनमेंट की, एंड उससे हमारे पास टेबल 4 बन गया. जब हमारे पास फाइनल सारी असाइनमेंट हो जाए, सो ऑल द जीरोज मस्ट बी आइदर असाइंड और क्रॉस. जितनी भी जीरो किसी भी रो और कॉलम में होगी वो या तो असाइंड हो या तो जीरो है. दिस इज वन थिंग. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर while doing assignment in the assignment problems. assignments हमने जीरोस को असाइन करना है. each row and column must have only one and only one assignment. आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में केवल एक असाइनमेंट है, सेकंड में भी एक है, थर्ड में भी. कॉलम वाइज भी चेक करेंगे, इसमें भी एक ही असाइनमेंट है, इसमें भी एक ही असाइनमेंट है, इसमें भी एक ही असाइनमेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस assignment problem. So friends, what we have learned in this lecture, we come to know that what are the assignment problems, and how to, and what are the rules, solution algorithm to find the optimal solution for the given assignment problem. And through one example we come to know that how rules are applied in actual numerical problem, right. So this is all about this lecture. Thank you.